ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਜ਼ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੋਰੀਆ, ਕਿਊਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਬੜੇ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਫਿਰ PDF ਸਿਸਟਮ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਫਸਲ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 70% ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਮਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ,
ना कोई होर टैक्स लगता सी, ना कोई सरचार्ज लगता सी, बल्कि उन्हां दी फसल जिहड़ी है वो सरकार अपने पैसे नाल खरीदती सी, उहदा अगे डिस्ट्रीब्यूशन करती सी। भावें ओवर प्रोडक्शन हो जाती सी कणक की, चौलों की, लेकिन सरकार फिर भी खरीदती सी। वो खरीदिया होया अन्न भावें गोदामां 'च पिया सड़ जाता सी साल 2 साल बाद, लेकिन सरकार किसानों को पैसे दिंदी सी। इहदे बराबर एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का भी अपना एक वैलफेयर मॉडल हैगा। जिहड़े देशों की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रोंग है, उन्हों का टैक्स कलैक्शन सिस्टम बहुत स्ट्रोंग है। उत्थे फाइनैंशियल रेगूलेशन जिहड़े ने वो बड़ी ईमानदारी नाल निभाए जाते हैं। वो कंट्रीज़ भी अपने बाशिंदियां नूं, अपने नागरिकां नूं बहुत सारिया सहूलतां फ्री च दिंदी है। जिवें इंग्लैंड फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड लै लो, इंग्लैंड तुहाडी जिहड़ी एजुकेशन है स्कूल लैवल तक की वो फ्री है। उस तो बाद हैल्थ सर्विस काफ़ी हद तक फ्री ने। बेरोज़गार लोगों नूं बेरोज़गारी का भत्ता मिलता है, जिहड़ा काफ़ी अच्छा खासा हुंदा। उहदे च भी लोग अपना खर्चा कट के 4 पैसे बचा लेंदे हैं। जिन्हां कोल अपना घर नहीं है, उन्हां नूं इंग्लैंड म्यूनसिपल कौंसलां जिहड़ियां ने उत्ते वो तुहानूं घर दिंदियां ने रहण लई, किराया उन्हां दा सरकार दिंदी है। तो इस किस्म दीयां बहुत सारियां फैसिलिटीज़ वैलफेयर स्टेट्स जिहड़ियां ने, जिवें वैसटर्न यूरोप के ज़्यादा कंट्री जिहड़े ने वो वैलफेयर स्टेट ने। तुहाडे कोल नौकरी नहीं तो घर बैठे तुहानूं पैसे मिलणगे। तुहाडी 70 साल की उम्र होगी तो तुहानूं घर बैठे पेंशन मिलेगी, भावें तुसीं सारी उम्र कोई काम कीता होवे या ना कीता होवे। तो इस किस्म दीयां फैसिलिटीज़ वैलफेयर स्टेट दिंदियां ने। लेकिन जिहड़े कंट्री इकोनॉमिकली साउंड ने, जिवें जापान होया, हांगकांग होया, सिंगापुर होया, साउथ कोरिया होया, ये कंट्री जदों कनेडा होया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जर्मनी, ये जो कंट्रीज़ कुछ इहो जिहे काम करते हैं तो सानूं गल समझ आउंदी है कि इन्हां कोले पैसा हैगा, खजाने भरे हुए ने। जिन्ना वो खर्चा करते हैं उन्नी कलैक्शन भी हर साल वो कर लेंदे ने, टैक्सेस के थ्रू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू, अपना जो माल बेचते हैं बाहर वो थ्रू, फिर एक्सपर्टीज जिहड़ा उन्हां दा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ जो पैसा कमाਉਂਦੀਆਂ ने सरकारां, ਉਹਦਾ एक ਵੱਡਾ हिस्सा वो अपने लोगों ਲਈ खर्च करते हैं। लेकिन साडे वर्गे देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ਦੇ देश, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ कि पूरे संसार ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ है, ਅਸੀਂ बहुत ਵੱਡਾ कंट्री हो गया, साडी तरक्की हो गई, दुनिया भर 'ਚ ਸਾਡਾ डंका चलदा। लेकिन अंदरली हालत आपां सारिਆਂ ਨੂੰ पता। ਜਿਹੜੇ गरीब देशों के जिन्हां दी इकोनॉमी मजबूत नहीं थी, उन्हां कंट्रीज़ के वैलफेयर सिस्टम का की होया वो असीं देख लिया। असीं ब्राज़ील विच भी देख लिया, असीं रशिया विच भी देख लिया। एक USSR कंट्री हुंदा सी, उहदे 17 कंट्री बन गए। 17 बनने तो बाद अज के दिन में वो आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि एक दूजे दियां जिहड़े नैचुरल रिसोर्सिस ने उन्हां ते कब्जा करन लई बहाना भावें नैटो का लगाउण, हथियारों की रेस का लगाउण। लेकिन असल गल ये है कि रशिया नूं यूक्रेन की गैस चाहिए है, यूक्रेन का यूरेनियम चाहिए, यूक्रेन के कॉस्टली धातु जिहड़े ने मैटल्स, खाना जिहड़ियां ने उन्हां जिहड़ा कीमती समान जमीन के थले दबिया होया वो रशिया काबू करना चाहता। इस करके वो लड़ाई जिहड़ी है वो अमेरिका की या नैटो की नहीं है, वो नैचुरल रिसोर्स के कंट्रोल की लड़ाई है। एक जमाने च रशिया जिहड़ा USSR हुंदा सी, वो दुनिया की सब तो वड्डी वैलफेयर स्टेट गिनी जाती सी। लेकिन उस तो बाद दिवाला निकलिया, भुखमरी हुई, जिन्नियां समाजिक बुराइयां वो सारियां उस सिस्टम च आईयां। क्राइम वधिया, माफिया वधिया, प्रोस्टिट्यूशन वधी, जुआ जवार वधिया, बेरोजगारी वधी, इस लोगों का सुइसाइड करने शुरू किए। ये हालात असीं सारे पिछले कुछ सालों में अपनी अखां नाल देखे रहे।
लेकिन ये मुकाबले में एक कंट्री चाइना जिहदी पॉपूलेशन हिंदुस्तान तो ज़्यादा है, एरिया दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज तो ज़्यादा, उन्होंने बड़े तरीके नाल अपना इंडस्ट्रीयल बेस मैन्यूफैक्चरिंग बेस इन्ना वड्डा कर लिया कि उन्होंने कदे फाइनांस की पैसे की घाट महसूस नहीं होएगी। उन्होंने समय के नाल नाल अपने आप को बदलिया, एक पासे स्टेट का कंट्रोल भी रखा रिसोर्सिस से, तो दूसरे पासे उन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइज को भी बढ़ाया। लेकिन पैसा सारे का सारा चाइना में ही पहुँचता है। अज चाइना दुनिया दीयां जिहड़ियां 3-4 स्ट्रोंगेस्ट इकोनमीज ने, उन्हां चों चाइना एक गिणिया जांदा, ते असीं पिछे कित्थों रह गए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, साडे देशों का बुरा हाल क्यों है? क्यों? वो इस करके कि साडी आमदनी घट है, खर्च ज़्यादा है। असी करजाई हाँ सारे के सारे, सरकारी खर्चे ते असी स्टेट्स जिहड़ियां ने वो ओवरड्राफ्ट लै लैके अपना खर्च चला रही। सरकारी अमला पहला असी इन्ना वधा लिया कि कई स्टेट्स का जिहड़ा सैलरी बिल है वो पूरे बजट का 40-45% हो जाता है। पूरे पंजाब का सैलरी बिल, सारे सरकारी मुलाजमां की तनख्वाह, पेंशन, उन्होंने घरां दे किराए, गड्डियां, टूर एंड ट्रैवल, ये सारे खर्च, मैडिकल अलाउंसेस सारे मिला के इन्ना खर्चा सरकारी मशीनरी से हो जाता, तो जोड़ा माड़ा मोटा पैसा बचता करजे का वो असी फ्री भी दे दें। हुण अद्धियां वैलफेयर स्कीम जिहड़ियां सेंटर ने शुरू कीतियां सी, खास तौर पर बीजेपी सरकार आने तो बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को घर बना के दिते जाणगे। तुसीं सारे लोग देखते हो, अपने आए गए निगाह मार के देखो कित्थे तुहानूं नज़र आउंदे आ गरीबां लई घर बने, दिसे किसे नूं? उस तरह जिहड़ियां फ्री भी दूसरियां दित्तियां गईयां, वो स्कीमां एक एक करके सरकार सारियां बंद कर रही है। एक एंबूलेंस स्कीम चली सी 108 शायद वह नंबर सी, 108, तुसीं उस नंबर पर फोन करो, तुहानूं कहदे सी 15 मिनट च एंबूलेंस तुहाडे घर पहुँच जाएगी। किन्ने फैन फेयर नाल स्कीम चालू हुई, इन्ना उहदा जोशो खरोश नाल स्वागत होया कि उस समय के मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपनी फोटो सेंटर दी एंबूलेंसां ते ला ली। एंबूलेंसां सेंटर ने दित्तियां, खर्चा सारा सेंटर का, ड्राइवरों को तनख्वाह सेंटर दिंदा सी, केंद्र दिंदा सी, अपना प्रचार उन्होंने कर लिया। जदों एंबूलेंस खराब हो गई, रीप्लेस हुई ही नहीं। अज मैनूं नहीं लगता किते पंजाब च कोई 20% एंबूलेंसां भी दौड़ रही होणगीआं 108 नंबर दियां, जिहड़ियां एक जमाने च इन्ने शान बात नाल दिखाईयां गईयां सी। इस तरह बहुत सारिया स्कीमां अज सरकार ने जिहड़ा राशन देना शुरू किया, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को 2 रुपये किलो कणक, 3 रुपये किलो चावल, या इस किस्म के होर सारिया चीज़ां वो सरकार कदे भी बंद कर सकती है। ये केंद्र सरकार दीयां स्कीमां ने, केंद्र सरकार पैसे दे के, हुण स्कीम केंद्र सरकार दी, राशन केंद्र सरकार दा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ी है उस स्टेटां दे हत्थ है। पंजाब की डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब स्टेट के हत्थ है। जिन्ने डीलर नियुक्त किए गए ने, डिपूआं के मालक, वो सारे पंजाब सरकार ने किए है। उन्होंने एक येलो कार्ड जिहड़ा आइडेंटिटी कार्ड वो पंजाब सरकार ने दिता होया। हुण जिहड़े वो डीलर ने हज़ारां ने पंजाब में, एक पिंड 3-3 4-4 डिपू ने, ते किन्ने पिंड पंजाब के अंदाजा ला लो किन्ने डिपू होणगे, किन्ने हज़ार डिपू होल्डर ने जिहड़े वो डिपू चला रहे हैं। हुण वो सरकार को मंग कर रहे हैं कि उन्होंने पक्का किया जाए। वो भाईवन स्कीम तो सेंटर सरकार की है, नौकरी तुसीं पंजाब सरकार तो क्यों मंग रहे हो? सेंटर तो मंगो। ये सेंटर की एक स्टेट्स के खिलाफ साजिश है। पहला तो केंद्र सरकार लोगों को बिगाड़ती है, इहो जिहियां स्कीमां अनाउंस कर करके। हर किसान के खाते में हर साल 6000 रुपया जाऊगा,
हर बजुर्ग नूं साल की 10,000 पेंशन दी जाऊगी। इहो जिहियां स्कीमां सैंटर अनाउंस करके साल 2 साल दिंदा, बाद चों बंद हो जांदियां क्योंकि पैसा केंद्र कोले भी है नहीं, लेकिन उहदा खमियाजा स्टेट गौरमेंट नूं भुगतना पैंदा। लोकां दी नाराज़गी अपने राज दीयां सरकारां नाल निकलदी है, वो बेचारे भुल जाते हैं कि तो स्कीम तो सेंटर की सीगी। सो इसे तरह जी ग्राम विकास योजना, घर घर में सिलेंडर देने की योजना, रसोई योजना, पता नहीं 137 स्कीमां भारत सरकार ने पिछले 8 सालों चलाइया। उन्होंने कारगर तौर पर असल रूप में हार्डली 10 या 12 स्कीमां चल रही हैं। फिर मैडिकल इंश्योरेंस करती जी हर बंदे की 5 लाख रुपए की, किसी भी हस्पताल तुम अपना इलाज कराओ 5 लाख रुपया सरकार देगी। तुम जरा अपने आंढ गुआढ़ किसी को पुछ के देखो, अज तक किसी को 5 लाख तक छोड़ो, किसी लाख रुपया भी मैडिकल ट्रीटमेंट कराने का मिले अज तक। कभी किसानों को जाके पूछो, गरीब किसानों को, कि उन्होंने की अज भी 6,000 रुपया साल का मिल रहा कि नहीं मिल रहा। मतलब ये सारिया बेवकूफ बनाने वाले काम सरकारां करदियां ताकि राज्यां विच अनसर्टनटी होवे। इसदा फर्क की हुंदा, आखिरी गल मैं करांगा फिर खत्म करांगा इसदा वीडियो। इन्ना करदा सरकार दे सिर चढ़ जाता इहो जिहियां स्कीमां चलाउण लई कि डेवलपमेंट लई पैसा नहीं बचदा। अद्धा बजट तुहाडा सैलरी खा गई मुलाजमां दी, अद्धा बजट तुहाडीआं वैलफेयर स्कीमां खा गईआं। हुण दसो कि जिहड़ा पैसा सड़कां बनाउण लई चाहीदा, स्कूलों दीआं इमारतां, कॉलेजां दीआं इमारतां, हॉस्पिटल बनाउण लई, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करन लई, आउण जाण दे साधन होर वधिया करन लई उन्हां लई सरकार कोले पैसा नहीं है। फिर सरकार की करती है, खर्चा बचाउण लई प्राइवेटाइजेशन शुरू कर देती है कि बसां दे रूट प्राइवेट लोगों को दे दिओ, स्कूल प्राइवेट ट्रस्टां नूं दे दिओ, हॉस्पिटल प्राइवेट लोगों को दे दिओ। मतलब जेलों तक बेचतियां पंजाब सरकार ने पंजाब दियां पैसे कमाउण लई। मतलब 150 करोड़ रुपए की जलंधर की जेल बेच के 150 करोड़ रुपए नाल सरकार का की बनूगा। इसका सब तो बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में सानू पंजाबियों नूं सब तो बड़ा भुगतना पै सकता। जदों सरकार कोले खर्च करन लई पैसा नहीं हुंदा, फिर अराजकता का माहौल बनता, फिर कीमतां वधदियां ने, चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, मिलदियां नहीं। जो हाल अज श्रीलंका का है, ना तो उत्ते पेट्रोल है, ना डीजल है, ना राशन है। श्रीलंका की करंसी के मुताबिक कई चीज़ों के भाव 300 गुणा वध गए। हुण लोग उत्थे लुटमार कर रहे हैं, चोरियां हो रही, आगजनियां हो रही, आपस लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दुकानां लुटियां जा रही, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, करफ्यू लग रहे हैं, पुलिस वाले गोलियां चला रहे हैं, मिलिट्री सड़कों पर घूम रही है। इस हालात अपने देश में भी कदे भी हो सकते हैं। इस करके इन्हों तो बचने की जरूरत है। लोगों को रोजगार दो, काम करने का मौका दो, अपनी कमाई की कमाई को खर्च बंदा बड़े ध्यान ना करता। फ्री दियां मिलियां चीज़ों को कोई आदमी सियाणप नाल खर्च नहीं करता। सो अगर पंजाब को बचाना है तो ये मुफ्त दियां चीज़ों तो बचाना पऊगा। अज बयान 2 दिन पहला भगवंत मान का आया मुख्यमंत्री का कि जुलाई के महीने तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री। अरे 300 तुसीं तां फ्री करती, जिथों बिजली खरीदो उन्होंने पैसे कौन देगा। तो ये जिहड़ियां चीज़ों तो बचण की लोड़ है। मुफ्त खोरी तो बचना बहुत जरूरी है। अज पंजाब का सब तो वड्डा कोई दुश्मन है तो मुफ्त खोरी है। तो आने वाले दिनों में होर विषय इशू लैके फिर हाजिर होवांगे। तब तक तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्नवाद।